Hello student, good morning. Jai Sri Swaminarayan. Student, today we will study Honeysuckle's 5th chapter, A Different Kind of School. Do you know these words? If you don't find out their meanings, bandage, crutch, cripple, honor, misfortune, system, look at the picture in this unit and guess in what way this school may be different from other school. So in this chapter, writer, who is writer of this chapter? The writer of this chapter is E.V. Lucas. Okay, so E.V. Lucas visited a school. That school is Miss Beam's school, and that school is different than the school we have today. First paragraph. I had heard a great deal about Miss Beam's schools, but not till last week did the chance come to visit it. The school is of Miss Beam's school, and writer had visited the school. Now what will he see in the school? हम पढ़ेंगे कि उसने स्कूल में क्या देखा. When I arrived there was no one in sight but a girl of about 12. Writer is saying that when he arrived at the school, he had seen 12 years old girl, nearly 12-year-old girl. Her eyes were covered with a bandage, and she was being laid carefully between the flowers bed by a little boy who was about 4 years younger. And even you can see in the picture that girl's eyes are covered with bandage, and one boy who is younger than her the girl is being laid by this boy between the flowers bed. She stopped, and it looked like she asked him who had come. So यहाँ पर राइटर जब स्कूल पर पहुँचते हैं तब उसे लगा कि लड़की स्टॉप होकर लड़की को पूछ रही है कि कौन है, कौन आया. He seemed to be describing me to her. Then they passed on, and when writer reached there at that time, that girl stopped, and she might be asking that boy about the writer. And ऐसा लग रहा था राइटर को कि ये लड़का जो है उसको डिस्क्राइब कर रहा है. किसको? राइटर को. ओके. पैराग्राफ नंबर 3. Miss Beam was all that I had expected. Middle-aged, full of authority, yet kindly and understanding. And when writer reached there, he met with this lady, Miss Beam, and whatever he expected about her. Yes, she was middle-aged, means nearly 50-year-old, full of authority, means she was working very well, and उसके हाथ में पूरी स्कूल की authority थी. She was one in all, yet kindly and understanding. She was full of authority even though she was kind and understanding. Her hair was beginning to turn grey. उसके बाल जो है वो ग्रे होना शुरू हो गए थे. And she had the kind of plump figure that is likely to be comfortable to a homesick child. And she was little bit plump figure. It means that little bit fat. I asked her some question about her teaching methods, which I had heard were simple. And here writer asked her about the teaching methods कि कौन सी स्टाइल से स्कूल में बच्चों को पढ़ाया जाता है. And also he had heard about the simple method of the teaching in that school. No one more than is needed to help them to learn how to do things, simple spelling, adding, subtracting, multiplying and writing. So Miss Beam said that the teaching methods are so simple. और कुछ ज़्यादा नहीं सिखाया जाता, बस स्पेलिंग, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड राइटिंग उतना ही सिखाया जाता है. The rest is done by reading to them and by interesting talks, during which they have to sit still and keep their hands quiet. Okay, so the rest is done by reading. रीडिंग भी होता है जहाँ पर वो इंटरेस्टिंग टॉक भी करते हैं, एंड उसके हाथ जो होते हैं वो डिसिप्लिन एंड मैनर्स में उसको बैठाया जाता है और रीडिंग की करवाया जाता है.
In between they can discuss and talk on interesting topics. There are practically no other relations. उस मिस भीम ने कहा कि there are practically no other relation, मतलब इतना कोई ज़्यादा दूसरा रिलेशन नहीं करवाते, सिर्फ इतना ही करवाते हैं स्कूल में. The real aim of this school is not so much to teach thought as to teach thoughtfulness, kindness to others, and being responsible citizen. So here Miss Beam says that the aim of the school, ये स्कूल का एम यही है कि बच्चे एक अच्छी सिटीजन बने, दूसरे के प्रति दया वाले बने, एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न बने, और एक उसके अंदर जो है विचार जो है वो थॉटफुलनेस, इट मीन्स दैट कि वो उसके माइंड में एक अच्छी थॉट्स जो है दूसरों के लिए आए. उतना ही ये स्कूल का एम है, मोटो है. लुक आउट ऑफ द विंडो अ मिनट विल यू. एंड हियर मिस बीम इनवाइट राइटर टू लुक आउट फ्रॉम द विंडो, एंड शी आस्क्ड writer to look out from the window. I went to the window which overlooked a large garden and a playground at the back. What do you see? Miss Beam asked. And here writer she had seen that there was a large playground, and at that time Miss Beam said that what do you see means आपने क्या देखा? I see some very beautiful grounds, I said. So writer said that he see some beautiful grounds is there, beautiful ground is there, and a lot of jolly children. Jolly means happy. He said that he is looking some happy children. It pains me though to see that they are not also healthy and active looking. And here he also said that some children are not happy and they are not looking healthy. When I came in, I saw one poor little girl being laid about. He said that when he had entered into the playground at that time, one poor girl, she was being laid by the young boy, younger than her. She has some trouble with her eyes. राइटर कहते कि उस बेचारी की आँख में कुछ तकलीफ थी और एक लड़का उसको लेकर जा रहा था. Now I can see two more with the same difficulty. Then writer said that कि देखो और भी मैं कुछ बच्चों को देख रहा हूँ जो ऐसी डिफ़िकल्टी के साथ है. And there is a girl which is a crutch watching the other two and at play. And देखो एक लड़की के पास क्रच है. क्रच मीन्स जो लंगड़ा आदमी होता है, वो जो एक इंस्ट्रूमेंट होता है उसके साथ जो लेकर चलता है उसको कहते हैं क्रच. सी सीम्स टू बी अ होपलेस क्रिपल. और ऐसा लग रहा है कि बेचारी एक वो क्रिपल की मदद से वो चल पा रही है. मिस बीम लाफ्ड. Oh no, she said. She is not really lame. This is only her lame day. The others are not blind either. It is only their blind day. I must have looked very surprised, for she laughed again. And here Miss Beam said that एक्चुअली फर्स्ट ऑफ ऑल वो तो बहुत हंसी, फिर कहा कि ये उसका लेम डे है और ब्लाइंड डे है. इस बात पर राइटर को बहुत सरप्राइज़ हुआ कि लेम डे और ये ब्लाइंड डे वो क्या होता है. तो ही वॉज सरप्राइज्ड टू सी द लेम डे एंड to see that lame day and blind day are the festival that celebrated in that school. This is a very important part of our system to make our children appreciate and understand misfortune. We make them share in misfortune too. So Miss Beam ने कहा कि कई लोगों की ज़िंदगी में मिसफॉर्चून मतलब कुछ ऐसा अनलक हो जाता है, वो लूले लंगड़े बन जाते हैं, कोई ब्लाइंड बन जाता है. तो उसके प्रति हमारी जो ये भावना है वो ऐसी नहीं होनी चाहिए, राइट. तो हम उसको हेल्प करनी चाहिए, हमको उसे हेल्प करना चाहिए. और ये लोग क्या फील करते, वो फीलिंग्स जो है वो बच्चों में आनी चाहिए. Each term, every child has one blind day, one lame day, one deaf day, and one injured day, and one dumb day. So student, these line are very important for you. कौन से वहाँ पर डेज मनाए जाते हैं. सो ब्लाइंड डे, डम डे, डीफ डे, इंजर्ड डे, okay, blind day. So these are the days that are celebrated in Miss Beam's school. During the blind day, their eyes are bended absolutely and they are on their honor not to peep, okay. And here the lesson of honor also taught them. So
ब्लाइंड डे जो सेलिब्रेट होता है उसमें झांकना नहीं होता, पीप मतलब लुक, झांकना। द बैंडेज इज पुट ऑन ओवरनाइट सो दे वेक ब्लाइंड। ओके, सो कब लगाई जाती है? रात को ही लगाई जाती है, जैसे कि उठे तो उसको उसका ब्लाइंड डे शुरू हो जाए। दिस मीन्स दैट दे नीड हेल्प विथ एवरीथिंग। सो डेली रूटीन लाइक बाथ, ब्रश, टेक ब्रेकफास्ट, सब में हमको हमारी आंखों की तो ज़रूरत रहती है। विदाउट आइज़, विदाउट साइट, इट इज़ वेरी टफ टू डू इवन अवर डेली रूटीन। तो जैसे ही उठते हैं उसकी आंख पर पट्टी लगाई होती है। एंड in each and every work they need the help. Other children are given the duty of helping them and leading them about. और दूसरों को कुछ काम दिया जाता है, जैसे कि किसी ने ब्लाइंड डे को ब्लाइंड बना है तो उसको हेल्प के लिए एक या दो स्टूडेंट हेल्प करते, ताकि हम दूसरों को कैसे हेल्प करें वो भी एक लेसन हम सीख सके। दे ऑल लर्न सो मच दिस वे, बोथ ब्लाइंड एंड द हेल्पर्स। इसमें दोनों को सीख मिलती है कि ब्लाइंड जो है वो पट्टी बांध कर होते तो उसको हेल्प करने में भी उसको कोई हेल्प करता है, तो हेल्पर और ब्लाइंड दोनों उसमें से सीख लेते हैं। देयर इज़ नो मिजरी अबाउट इट, मिस बीम्स कंटिन्यू। उसने कहा कि इसमें कोई मिजरी की बात नहीं है, अनप्लीजेंटनेस की बात नहीं है। एवरीवन इज़ वेरी काइंड एंड इट इज़ रियली समथिंग ऑफ अ गेम। एवरीवन इज़ वेरी काइंड। ओके, जो हेल्पर है वो भी काइंड है। और कभी क्या होता है कि जो हेल्पर है उसको कभी ब्लाइंड डे सेलिब्रेट करना है और जो ब्लाइंड बने उसको कभी हेल्पर बनना होता है, तो ये एक दूसरों की इस तरह से हेल्प करते हैं। एंड इन दिस वे बच्चों में दूसरों को हेल्प करने की जो भावना है, गुड फीलिंग्स जो होती है वो क्रिएट होती है। बिफोर डे इज़ ओवर दो इवन द मोस्ट थॉटलेस चाइल्ड रियलाइज वॉट मिसफॉर्च्यून इज़। और सब कैसा भी कोई थॉटलेस पर्सन ना हो, थॉटलेस चाइल्ड ना हो, वो भी रियलाइज़ करता है कि जीवन में मिसफॉर्च्यून क्या होता है। द ब्लाइंड डे इज़ ऑफ कोर्स रियली द वर्स्ट मीन्स सबसे बुरा। बट सम ऑफ द चिल्ड्रन टेल मी दैट द डम डे इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट। और किसी बच्चों ने कहा कि डम डे डिफ़िकल्ट है बिकॉज क्योंकि बच्चे कभी ये बोले बिना नहीं रह सकते, राइट। आपको कोई कहे कि 1 घंटे तक नहीं बोलना है तो आप पर कंट्रोल नहीं रख पाते। सो सम स्टूडेंट फाइंड्स ब्लाइंड डे इज़ द वर्स्ट वन एंड सम स्टूडेंट सेड दैट डम डे इज़ द वर्स्ट वन। वी कैन नॉट बैंडेज द चिल्ड्रंस माउथ, सो दे रियली have to exercise their willpower. And during the mum कीपिंग मम, मतलब जब हम कुछ ना बोलते हैं तब हमारा जो है विल पावर जो होता है वो इसकी एक्सरसाइज हो जाती है। इट बिकम स्ट्रोंगर। Come into the garden and see for yourself how the children feel about it. So Miss Beams invited writer to visit the garden and ask the children what they feel about it. उसने कहा कि आप जाइए और बच्चों को पूछिए कि कैसा वो फील करते हैं। Miss Beam led me to one of the bandage girl. और राइटर जो है उसको मिस बीम कहाँ लेकर जाती है? प्लेग्राउंड में, जहाँ एक लड़की बैंडेज गर्ल है। Here is a gentleman come to talk to you, said Miss Beam and left us. So Miss Beam ने वो लड़की को कहा कि जेंटलमैन जो है आपसे बात करना चाहते। Then Miss Beam left us means कि राइटर को वो प्लेग्राउंड पे छोड़कर कहीं वो आगे निकल जाती है। Don't you ever peep? I asked the girl. Oh no, she exclaimed. That would be cheating. But I had no idea it was so awful to be blind. You can't see a thing. You feel you are going to be hit by something every moment. It's such a relief just to sit down. Okay. So when writer asked that girl, don't you ever peep? क्या तुम झाँक नहीं लेती हो कभी बीच में? तो लड़की कहती है कि no, it's a cheating. यानी कि कभी इस तरह से झाँकना एक चीटिंग होती है। एंड एवरी मोमेंट पर ये डर लगता है कि कहीं हम किसी से टकरा जाएंगे, हम कहीं हिट हो जाएंगे किसी से भी, तो इसलिए अच्छा है कि बैठे रहे। आर योर हेल्पर्स काइंड टू यू? आई आस्क्ड। सो राइटर आस्क्ड दैट गर्ल दैट वेदर हर हेल्पर्स आर काइंडफुल टू हर। फेयरली, बट दे आर नॉट एज केयरफुल एज आई शैल बी when it's my turn. Those that have been blind already are the best helpers. It's perfectly ghastly not to see. I wish you would try. Okay, तो फेयरली उसने कहा कि हाँ सभी इतने केयरफुल होते हैं, बट
And she said that, but they are not as careful as I shall be when it's my turn. जब उसका खुद का टर्न आता है तो बहुत ही केयरफुल बन जाती है. Those that have been blind already are the best helpers. Okay? जो खुद जो ब्लाइंड बनती है उसके लिए भी बहुत केयरफुल रहना पड़ता है कि कहीं भी किसी भी वक्त आप हिट हो सकते हो, गिर सकते हो. इट्स परफेक्टली गेस्टली नॉट टू सी. आई विश यू वुड ट्राई. तो गर्ल कहती है कि आई विश कि आप भी ट्राई करें. शेल आई लीड योर एनीवेयर आई आस्क. सो राइटर आस्क कि क्या उसको कहीं भी लेकर जाए. मीन्स प्ले ग्राउंड में राइटर जो है वो लड़की को कहते हैं. ओके. ओह यस सी सेड. दैट girl said that, okay, let's go for a little walk. That girl said that, let's go for the little walk. You can see in picture. Only you must tell me about things. Okay. तो लड़की कहती है कि आसपास में जो चीज़ें है उसके बारे में मुझे बताना. I shall be so glad. मैं बहुत ही खुश हो जाऊंगी. When today is over. जब ये दिन ख़त्म हो जाएगा. The other bad days can't be half as bad at this. तो other days बुरे हैं but इससे तो blind day से तो half बुरे हैं. मतलब blind day is the worst one. Having a leg tied up and hopping about on the crutch is almost fun, I guess. तो एक पैर आधा बांध देना और क्रच के ज़रिए चलना तो वो तो, और हॉपिंग करके चलना वो तो मेरे लिए थोड़ा फ़नी रहेगा. Having an arm tied up is a bit more troublesome because you can't eat without help and things like that. तो जिसके हाथ नहीं होते वो भी तो बेचारे मिसफॉर्चून का सामना करते. तो हाथ बांध देना वो भी दिन थोड़ा ट्रबलसम होता है बिकॉज आपको दूसरे की मदद लेनी पड़ती है खाने के लिए. आई डोंट थिंक आई विल माइंड बीइंग डेफ फॉर अ डे, एटलीस्ट नॉट मच. और डेफ बन जाना मतलब कान को चाहे कैसे भी बंद करो थोड़ा आवाज़ तो आ जाता है, इसलिए वो इतना बुरा नहीं है. बट बीइंग ब्लाइंड इज़ सो फ्राइटनिंग. इसीलिए ये लड़की कहती है कि ब्लाइंड डे बहुत ही फ्राइटनिंग है, डरावना है. माई हेड एक्स ऑल द टाइम जस्ट फ्रॉम वरिंग दैट आई विल गेट हर्ट. सो ऑल द टाइम सी इज़ कंसर्न, सी वरिंग कि कहीं ना कहीं मैं टकरा जाऊंगी. वेयर आर वी नाउ. अब ये लड़की कहती है कि हम कहाँ पहुँचे. इन द प्ले ग्राउंड आई सेड. राइटर ने कहा कि हम प्ले ग्राउंड में पहुँचे. We are walking towards the house. Miss Beam is walking up and down the garden with a tall girl. उसने कहा कि हम प्ले ग्राउंड में हैं और मिस बीम जो है एक लंबी सी लड़की के साथ अप एंड डाउन कर रहे हैं. What is the girl wearing? My little friend asked. So that girl asked that what does that girl wear? अ ब्लू कॉटन स्कर्ट एंड पिंक ब्लाउज. सो राइटर ने कहा कि उसने ब्लू कॉटन स्कर्ट पहना है और जो पिंक कलर का टॉप है ब्लाउज है. आई थिंक इट्स मिली. शी शेड. व्हाट कलर इज़ हर हेयर. सो मिली सेड दैट. आई थिंक कि मुझे लगता है कि वो मिली है. क्यों लगता है? क्योंकि उसकी आंखों पर पट्टी बांधी हुई है, इसलिए वो कहती है कि उसे लगता है कि वो मिली है. देन सी आस्क्ड राइटर दैट व्हाट इज़ द कलर ऑफ दैट हेयर ऑफ दैट गर्ल. वेरी लाइट आई से. राइटर सेड दैट वेरी लाइट कलर ऑफ हेयर. येस दैट्स मिली. सी इज़ द हेड गर्ल. देन दैट गर्ल सेड दैट yes, she is Millie and she is the head girl of the school. There is an old man tying up Rosie's eye shade. You can see in picture. राइटर ने कहा कि एक ओल्ड मैन है जो टाइंग अप रोजेस मतलब वो गार्डनर है और फूलों के साथ वो काम कर रहे हैं. येस दैट्स पीटर. ही इज़ द गार्डनर. दैट गर्ल सेड दैट ही इज़ पीटर एंड ही इज़ द गार्डनर. He is 100 of years old, means he is an old man. And here comes a girl with curly red hair. She is on crutches. And writer said that there is a girl who has curly red hair and she has on crutches. That's Anita, she said. That girl said that girl is Anita. So student ये सब क्या है. ब्लाइंड गर्ल को जब राइटर लीड कर रहे तब जो राइटर है बताते जा रहे और ये जो है मिली को पहचान जाती है, गार्डनर को पहचान जाती है और अनीता को भी पहचान जाती है क्योंकि आंखों पर पट्टी है, उसका वो ब्लाइंड डे था. सो हियर now the last paragraph number 17. And so we walked on. Gradually I discovered that I was 10 times more thoughtful than I ever thought and I could be. So here after visiting that school, here writer also felt that he became 10 times more thoughtful.
थॉटफुल मतलब एक अच्छे से विचार वाले विचार जो होता है हमारे अंदर प्रस्थापित होता है। तो उसने कहा कि मैं 10 टाइम और जो है थॉटफुल बन गया हूँ आफ्टर विजिटिंग दैट स्कूल। आई ऑल्सो रियलाइज दैट इफ़ आई हैड टू डिस्क्राइब पीपल एंड थिंग्स टू समवन एल्स इट मेड देम मोर इंटरेस्टिंग टू मी। और पता है ना, कभी कभी आप जब खेलते भी हो कि किसी चीज़ को डिस्क्राइब करते हो और सामने वाला गेस करके उसका आंसर देता है, सो इट बिकम अ गुड interesting game, right? When I finally had to leave, I told Miss Beam that I was very sorry to go and here then he came to Miss Beams and उसको कहते कि अब उसको यहाँ से जाना पड़ेगा। she replied, then there is something in my system after all. Okay, उसने कहा कि यही जो सिस्टम है उसकी स्कूल में जो अप्लाई की जाती है। एंड दिस चैप्टर इज रिटन बाय ईवी लुकास। तो स्टूडेंट ऐसे ऐसे दिन मनाए जाते, ब्लाइंड डे, डेफ डे, लेम डे, इंजर्ड डे। तो इस तरह से एक दूसरे के प्रति हेल्पिंग की जो फीलिंग्स है वो क्रिएट होती है। एंड येस, हम थॉटफुल भी बनते हैं, दूसरे के प्रति हमारे लिए दया का जो है जन्म होता है। तो इन दिस वे मिस बीम की स्कूल में ऐसे डेज मनाए जाते थे। Working with the text, put these sentences from the story in the right order and write them out in a paragraph. Don't refer to the text, means you have to arrange the lines and write in a paragraph. एक के ऊपर जो एक के बाद जो दूसरा पैराग्राफ लाइन्स आती है वो आपको ढूंढ कर लिखनी है। ओके, और आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, वाई डू यू थिंक द राइटर विजिटेड मिस बीम्स स्कूल? सो पैराग्राफ नंबर 1, पैराग्राफ नंबर 1, आई हैड हर्ड अ ग्रेट डील अबाउट मिस बीम्स स्कूल। ओके, सो आई के बदले ही कर देना, और राइटर भी चलता है, ही हैड हर्ड अ ग्रेट डील अबाउट मिस बीम्स स्कूल एंड दैट इज़ वाई ही विजिटेड मिस बीम्स स्कूल। चिल्ड्रन, आई एम एक्सप्लेनिंग ओरली, आपको जो है वो आपकी होमवर्क बुक में लिखने ये क्वेश्चन एंड आंसर। तो इसका आंसर भी ऐसे आएगा कि राइटर विजिटेड मिस बीम्स स्कूल बिकॉज ही हैड हर्ड अबाउट मिस बीम्स स्कूल। ओके, और पैराग्राफ नंबर 1 में से ही हैड हर्ड अ ग्रेट डील अबाउट मिस बीम्स स्कूल एंड दैट इज व्हाई विजिटेड द मिस बीम्स स्कूल। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट वाज द गेम दैट एवरी चाइल्ड इन द स्कूल हैड टू प्ले? तो हमने डिस्कस कर लिया है ऑलरेडी। Every child in the school had to play one blind day, deaf day, dumb day, injured day. Okay, question number 3, each term every child has one blind day, one lame day. Complete the line. Which are the hardest and why was it the hardest? So in the school the different days are celebrated, तो days के नाम लिखने हैं। which day was the hardest? So blind day is the hardest one. Okay, and some students said that dumb day is the hardest one because children cannot live without speak, तो वो रह भी नहीं सकते बिना बोले, दैट इज़ वाई इट इज़ द हार्डेस्ट डे। सो पैराग्राफ नंबर 9, 11 एंड 15 उसमें से आपको इसके आंसर मिल जाएंगे। लास्ट वन, व्हाट वाज द पर्पस of these special days? So what was the purpose of these special days? So paragraph number 5, the real aim of the school is not so much to teach thought as to teach thoughtfulness, kindness to other and being responsible citizen. Look, citizen वहाँ तक आएगा, और पैराग्राफ नंबर 9 में से आएगा तो क्या आएगा, पैराग्राफ नंबर 9 में से आएगा कि they all learn to show much this way, both the blind and helpers. So in this way कोई ना कोई इसमें से सीख लेता है। ओके, तो ये क्वेश्चन एंड आंसर है आपकी होमवर्क बुक में लिखने हैं। और ए एक्सरसाइज ए एंड एक्सरसाइज बी, एक्सरसाइज ए एंड एक्सरसाइज बी वर्किंग विद द टेक्स्ट you have to write in your homework book. Thank you and have a nice day.